Good morning to all of you. I am Advocate Anand Kumar Goyal and I welcome you all on this YouTube channel, Law Learning with AG. Today we will start discussing about Hindu Marriage Act 1955. This act is very important from the point of view of judicial service examinations and as well as from the point of view of litigation also. इस एक्ट की ना हर एक पेपर में एक अपनी वेटेज है एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक एनी एग्जाम. सो in this lecture we will try to develop a basic understanding about this subject. In this lecture we will discuss about the historical background of Hindu Marriage Act and why this act was enacted by the government of India. And in the next lectures, we will discuss about the applicability of this act, meaning of Hindu, conditions for the solemnization of marriage, and many more things. As we all know, this act was enacted by the Government of India in the year 1955 and it came into force on 18th of May 1955. The main objective of this act is to regulate the provisions regarding solemnization of marriages among Hindus, dissolution of marriage, restitution of conjugal rights, judicial separation, maintenance and many other things. किसी भी एक्ट को समझने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट को लागू क्यों किया गया है. If we know the basic need, then we can easily understand the objectives of that act and the intention of legislature. और अगर हमें ये दोनों चीज़ें क्लियर है ना देन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट एंड वी कैन इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट वेरी इजीली. दैट इज वाई बिफोर स्टार्टिंग विद द हिंदू मैरिज एक्ट हम इससे पहले की कुछ कंडीशंस को ब्रीफ में समझेंगे. इस एक्ट के लागू होने से पहले जो भी मैरिज हिंदू रिलीजन में सॉलमिनाइज होती थी वे अकॉर्डिंग टू शास्त्रिक लॉ से होती थी और शास्त्रिक लॉ ही हमें मैरिज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता था. अकॉर्डिंग टू शास्त्रिक लॉ हर पर्सन के लिए मैरिज परफॉर्म करना ऑब्लिगेटरी था क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिन्हें अपने स्पाउस के बिना परफॉर्म नहीं किया जाता था. एंड द सेकेंड मेन रीज़न वॉज टू प्रोक्रिएट द मेल चाइल्ड जो कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके अपने पिता को मुक्ति दिलवा सके. इन शास्त्रिक लॉ 3 kinds of marriages were very famous. The first one was Brahma marriage, the second one was Asura marriage, and the third one was Gandharva marriage. In Brahma marriage, the bride was given as a gift by her father. But in Asura marriage, the bride was virtually sold by her father. But the Gandharva marriage was totally different from Brahma marriage as well as from the Asura marriage. Gandharva marriage is just like a love marriage. In Gandharva marriage, there was mutual agreement and love and affection between the bride and groom. But Hindu Marriage Act does not specifically provide it for any form of marriage. This act uses the word Hindu marriage. उस समय जो भी मैरिज सोलमिनाइज होती थी वे कुछ रिचुअल्स के अकॉर्डिंग होती थी और कुछ सेरेमनीज को परफॉर्म करना पड़ता था लाइक कन्यादाना, पानी ग्रहण, सप्तापदी एंड विवाह होमा. आउट ऑफ दीज सेरेमनीज सप्तापदी वॉज वेरी एसेंशियल सेरेमनीज एंड इवन टुडे द हिंदू मैरिज एक्ट recognizes this ceremony. According to Hindu religion, marriage is not a contract between two spouses. It is a sacrament, and according to Hindu religion, it is permanent. It is indissoluble union. It is eternal union and a holy union, and it could not be dissolved. The concept of divorce was alien at that time to the Hindu religion. बट अगर किसी कम्युनिटी में कोई कस्टम प्रिवेल करता है जो डाइवोर्स को रिकॉग्नाइज करता है तो उस समय उस कस्टम के अकॉर्डिंग उस राइट को एक्सरसाइज किया जाता था. बट जनरली देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स.
एंड वन मोर थिंग, एट दैट टाइम देर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ मोनोगैमी. उस समय पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री बहुत फेमस थे. पॉलीगैमी बेसिकली मीन्स कि एक व्यक्ति कितनी भी फीमेल से शादी कर सकता था, और पॉलीएंड्री का मतलब कि एक फीमेल कितनी भी मेल से शादी कर सकती थी. बिफोर दिस एक्ट कोई भी ना यूनिफॉर्म रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे. हिंदू रिलीजन वॉज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन कस्टम एंड वैदिक लॉ. दैट इज वाई आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि कॉडिफाइड एक्ट को इनेक्ट किया जाए, जो इस रिलीजन में जो भी मैरिजेस परफॉर्म होती हैं उनको रेगुलेट किया जाए, जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजेस होते हैं उनको रेगुलेट किया जाए, और जो सिर्फ हिंदू रिलीजन पे ही एप्लीकेबल हो. तो सरकार ने 1955 में इस एक्ट को इनेक्ट किया, जिसे हम हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं. इस एक्ट के इनेक्ट होने से पहले जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, इस एक्ट के इनेक्ट होने के बाद उनमें कुछ चेंजेस लाए गए और सरकार ने कुछ नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें डाइवोर्स है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, जुडिशियल सेपरेशन है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट मैरिज इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी. इट इज़ प्योरली डिस्क्रिशन ऑफ पार्टीज वेदर दे वॉन्ट टू solemnize a marriage or not. In the next lecture we will discuss about these things. और आज हमने इस लेक्चर में ये डिस्कस किया कि इस एक्ट को लागू क्यों किया गया, और हमने ये पढ़ा कि इस एक्ट के लागू होने से पहले जो भी मैरिज सोलमनाइज होती थी वो शास्त्रिक लॉ के अकॉर्डिंग होती थी, और किन किन सेरेमनीज को परफॉर्म करके होती थी वो भी आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा. और हमने ये पढ़ा कि उस समय डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं था और मोनोगामी का कंसेप्ट नहीं था, पर आज के इस एक्ट में डिवोर्स का भी कंसेप्ट है और मोनोगैमी का भी कंसेप्ट है, जो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.